Hello everyone, very good morning to all of you. This is Achal Kumar Pandey. I welcome to all of you on my YouTube channel Achal Pandey Ara Pirota. Today I have decided to cover definitions and explanations of various forms of land masses and water bodies. On the basis of request mentioned in the comment section, I have decided to make this video. Many students have requested me in comment section to define the various forms of the landmass and water bodies like continents, mountain, plateau, isthmus. Similarly, forms of water bodies like oceans, sea, strait, channel, etc. So I have decided to cover this topic in two different parts. However, this will be part 1 and very soon I will be covering part 2 also. So in this video I will be covering only the form of landmass, and in the part 2 I will be covering water bodies. So let us start. So in the landmass I have decided to cover continent, mountain, plateau, peninsula, archipelago, along with islands, isthmus, deserts. So coming to the continents, so first of all I would like to cover the exact definitions. Later I will be covering the explanation mostly in Hindi, so that both Hindi and English medium student can understand easily. So continents are understood to be large continuous mass of land ideally separated by expanses of water which are found on continental plates. तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं पहले वाले वीडियो में भी कवर किया हूँ कि all the continents they are situated on continental plates, or it is also known as tectonic plates. There are 7 tectonic plates except Asia and Europe separately, because it is known as the Eurasia, and Asia and Europe commonly Eurasia is situated on the single plates. So all the continents are situated on continental plates and they are separated by a large water body, यानी कि कोई बड़ी जल राशि जो कि ओशियंस हम कहते हैं. तो कहीं ना कहीं इस हर एक कॉन्टिनेंट को कोई ना कोई ओशियन उसको दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है. हम आगे अभी हम मैप के माध्यम से और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे. एंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी, ऑलरेडी आई हैव मेंशन, एंड दे आर 7 in numbers, and they are order from largest to smallest in area are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Once again, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Now let us move to the map. So as you know, this one is the map of the world in which all the continents and the water bodies have been given. So let us come to all the continents one by one. So this one is the Asia and this one is Europe. However, it was known earlier Eurasia, but there are some certain structures which includes landmass and water body together, like the Ural mountain, Ural नदी, Caspian Sea, Black Sea, Mediterranean Sea. ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर का काम करती हैं, लेकिन कोई बड़ी जल राशि नहीं है, कोई ओशियंस नहीं है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करे. तो यहीं पे मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जो भी डिफिनीशंस है, ज्योग्राफी एक अवधारणा का सब्जेक्ट है, और जो भी डिफिनीशंस हैं ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे चीज़ को एग्जैक्टली डिफाइन करें. तो यानी कि रूल्स आर मेड फॉर मोस्टली 80 और 90% थिंग्स, नॉट फॉर रिमेनिंग 20%. तो उसी आधार पर आप लोग को समझना होगा कि जो अगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर डिफिनीशंस को अगर मान रहा है तो दैट इज द डिफिनीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अगर हम इस यूरेशिया को छोड़ दें तो बाकी कोई भी हम कॉन्टिनेंट को, जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका के इस साइड में नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, और यूरेशिया को हम अगर ले लें तो इधर आर्कटिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है. तो कोई ना कोई ओशियन जो है एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग कर रहा है. ये अमेरिका है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है. तो यानी कि हिंदी में इट इज नोन एज महाद्वीप और महादेश. तो यानी कि महाद्वीप, a small land mass surrounded by water from all sides, that is known as the island, and the large land mass surrounded by water is known as continent. Now let us move to the next slide. Mountain. A mountain is an elevated portion of earth crust that shows significant exposure of bedrocks.
Mountain is larger than a hill, typically rising at least 1000 feet above the surrounding land. Mountains are formed through tectonic forces, erosion or volcanism. Now let me explain you. जो माउंटेन होता है जो एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है और मोस्टली ये बेड रॉक यानी कि हार्ड रॉक से मिल करके बना होता है। कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसको कोबर का भूसंगति सिद्धांत और प्ले बर्तन का सिद्धांत इसे डिफाइन किया है। और अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो वो पहाड़ जो कि 1000 फीट से अबव होता है उसको माउंटेन बोलते हैं, और उससे जो छोटा होता है उसको हम हिल बोलते हैं। एंड अगर हम इसकी उत्पत्ति को देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेट्स हैं जिसके ऊपर महादेश और महासागर अवस्थित हैं, इनके 2 या 2 से अधिक के टकराव के फलस्वरूप उसमें जो बलन पैदा होता है, फोर्स ऑफ इरोशंस के फलस्वरूप जो भी माउंटेन्स होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। नाउ लेट अस कम टू द प्लेटू। यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि जो बड़ा है वो माउंटेन है, छोटा है वो प्लेटू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एग्जैक्ट डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं। ए प्लेटू इज ए फ्लैटेड एलिवेटेड लैंड फॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव सराउंडिंग एरिया on at least one side, and they are one of the 4 major landforms along with the mountains, plains and hill. So there are 4 different forms of the lands. Basically these are mountains, plain, hills and plateau. तो उसमें if you discriminate the mountain with the plateau, so plateau is having plateau does not have peak, whereas the mountain, all the mountains have sharp peak. तो as example तिब्बतन प्लेटू विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस रिवर है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू और लार्ज प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। बट हाउएवर देयर आर सेवरल माउंटेन्स विच आर स्मॉल और स्मॉलर देन दैट तिब्बतन प्लेटू, बट द डिफरेंस इज दैट प्लेटू डज नॉट हैव पीक। Now coming to the peninsula, this is very very important. Most of the students are confused with the peninsula. So a landform surrounded by water from 3 sides of its border while being connected to mainland from which it extends. यानी कि एक वैसा भूमि, एक वैसा लैंडफॉर्म जो कि 3 तरफ से किसी बड़ी जल राशि से घिरी हुई हो, एंड द सराउंडिंग वाटर इज अंडरस्टूड टू बी कंटिन्यूअस दो नेसेसरीली नॉट नेम्ड एज ए सिंगल वाटर बॉडी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही जल राशि से, कोई अलग अलग नाम की भी जल राशि से 3 तरफ से घिरी हुई हो, और वो लैंड मास और जो अपने मेन लैंड मास से जुड़ा हुआ हो, वो उसका विस्तार कोई जरूरी नहीं है कि पानी से घिरा हुआ। आगे हम अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे। एज एग्जाम्पल अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन पेनिनसुला को भी अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द इंडिया इज पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड। In the west Arabian Sea is there, in the south Indian Ocean and in the east Bay of Bengal is there। और वो एक बड़ी भूमि से बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से वो जुड़ाव रखता है, और नीचे वाला को हम पेनिनसुला बोलते हैं। Now coming to the islands and archipelago, this is also very important and there is some ambiguity that what is difference between island and archipelago, and later we will be discussing with the help of map also. A piece of subcontinental land that is surrounded by water from all sides is called island, that is good। अगर एक बड़ी भूमि को अगर 3 तरफ से पानी कवर करता है तो पेनिनसुला हो गया, अगर चारों तरफ से अगर पानी कवर करता है तो आइलैंड हो गया। एंड ए ग्रुपिंग ऑफ आइलैंड सच एज फिलीपींस एंड इंडोनेशिया इज रिफर्ड एज एन आर्कीपेलागो, यानी कि जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स कहीं एक जगह पे अवस्थित हो, छोटे छोटे तो उसको हम आर्कीपेलागो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम एरिया देखें तो इंडोनेशिया का ग्रीनलैंड से बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वाई ग्रीनलैंड इज नोन एज द लार्जेस्ट आइलैंड बिकॉज दिस इज द सिंगल आइलैंड। और if you count the number of islands, the Indonesia is having the maximum number of islands across the world. So Indonesia is having almost all 7,000 islands together. That's why it is known as the largest archipelago of the world. इसके अलावा और भी बहुत सारे archipelago अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। So this one is the map. Mostly I would like to cover 2-3 important peninsula. So this one is the Arab Peninsula, जिसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अरब पेनिनसुला है। इसके 3 तरफ से वाटर है, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ आदेन है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पार्सियन गल्फ है। ये 3 तरफ से पानी इसको घेर रखा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज दी पेनिनसुला। दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए इंडियन पेनिनसुला इसको हम बोलते हैं। देखिए जैसा कि इंडिया का आधा रेस्ट
लैंड ऑफ द इंडिया दैट इज द लैंड लॉक, एंड उसके साथ ये पेनिनसुला जुड़ाव रखता है जो कि एक बहुत बड़ी जल राशि के साथ तीन तरह से घिरा हुआ है। इसके अलावा दिस वन इज द मलाय पेनिनसुला, ये मलेशिया और ये थाईलैंड वाला पोर्शन का मलाय देखिए, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अभी हम अगर आर्किपेलागो का बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगले स्लाइड्स में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये इंडोनेशिया है, तो ये देखिए इतना बड़ा ये इसका इलाका है और कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स आर हियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द आर्किपेलागो। और हम इस मैप में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दिस वन इज द ग्रीनलैंड, लेट मी डिमार्केट। चलो, ये ग्रीनलैंड है, ये देयर इज ओनली सिंगल आइलैंड, एंड दिस वन इज द इंडोनेशिया, ये आर्किपेलागो। यहाँ पे इतने सारे ये फैलाव रखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी कुछ एक आर्किपेलागो है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द आर्किपेलागो, एंड दिस वन इज द आइलैंड। देयर आर सम सर्टेन कंट्रीज दे आर ऑल्सो आइलैंड, जैसे कि एशिया में भी हम बात करें तो अभी दिखाई तो नहीं देगा, वैसे भी यहाँ पे साइप्रस कंट्री है जो कि कम्प्लीटली आइलैंड है। उसके बाद और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये मेडागास्कर है दैट इज द आइलैंड, और बोर्नियो आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनिया है, दीज आर मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। Now isthmus, it's also very important to understand. An isthmus is a narrow piece of land that connects two large land masses and separates two water bodies. Once again, I would like to repeat. An isthmus is a narrow piece of land that connects two large land masses and separates two water bodies. यानी कि एक नैरो लैंड की एक संकीर्ण पट्टी और पीस जो कि दो बड़े भूभाग को कनेक्ट करती हो, दो बड़े भूभाग को कनेक्टिविटी देती हो और दो बड़े जल राशि को पृथक करती हो, सेपरेट करती हो। अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। दे आर नेचुरल साइट फॉर द कैनाल एंड पोर्ट्स, यानी कि उसी स्थमस को आर्टिफिशियली कट करके कैनाल बनाया जाता है और वो कैनाल दो बड़े जल राशि को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। एंड कैनाल्स आर ऑफन बिल्ट अक्रॉस द स्थमस वेयर दे मे बी शॉर्टकट फॉर मैरीन ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर उस स्थमस को कट करके हम कैनाल बना देते हैं तो वो शॉर्टकट रूट प्रदान करता है। एज एग्जाम्पल पनामा एंड स्वेज स्थमस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। हम अभी मैप में देखेंगे इसको आगे। नाउ कमिंग टू द डिजर्ट। ए डिजर्ट इज ए रीजन ऑफ लैंड दैट इज वेरी ड्राई बिकॉज इट रिसीव्स लो अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। यहीं पे मैं बता दूं, प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ रेन, फॉग एंड मिस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। वेयर लिविंग कंडीशंस आर हॉस्टाइल फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड इवन अदर वेजिटेशंस ऑल्सो, यानी कि वो भूमि, वो लैंड मास जो कि जो निर्धारित किया हुआ जो भी स्केल है उससे मिनिमम अगर जहाँ पे बारिश हो तो उसको हम डिजर्ट कहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो गर्म प्रदेश जैसे राजस्थान में जो हमारा डिजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसी टाइप का रेगिस्तान नहीं होता है। दो टाइप का, उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधीय डिजर्ट होते हैं। जैसे कि हमारे इधर लेह लद्दाख रीजन में भी डिजर्ट हैं और भी बहुत सारे वर्ल्ड में डिजर्ट हैं जो कि टोरिड जोन और फ्रिजिड जोन, फ्रोजन जोन, दोनों जोन में ही डिजर्ट होते हैं। डिजर्ट जनरली रिसीव्स लेस देन 250 mm और 10 इंचेज ऑफ प्रिसिपिटेशंस ईच ईयर, यानी कि पर ईयर अगर 25 सेंटीमीटर या 250 mm या 10 इंच जिस किसी भी स्केल में हम समझें तो कम अगर बारिश जहाँ पे होगी, चाहे वो टोरिड जोन हो चाहे वो फ्रिजिड जोन हो, तो उसको हम डिजर्ट परिभाषित करेंगे। एज एग्जाम्पल सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थार इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द इंडिया। एंड इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया अगर हम देश भी लें तो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डिजर्ट, और उसके जो सिटी हैं, कोस्टल सिटी है मैक्सिमम, जो कि सारे किनारे किनारे कोस्टों पे बसे हुए हैं। नाउ दिस इज द मैप ऑफ द स्थमस, जैसा कि हमने बताया, ये दिस वन इज द एशिया एंड दिस वन इज अफ्रीका, और ये दिस वन इज द स्थमस, स्वेज स्थमस, और ये दिस इज द पोर्शंस ऑफ द इजिप्ट। हाउएवर इजिप्ट इज काउंटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका, और यहीं पे इसी स्थमस को कट करके आर्टिफिशियली यहाँ कैनाल बनाया गया है विच गिव्स कनेक्टिविटी टू रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एशिया को और अफ्रीका को, ये छोटी सी पट्टी दोनों को लैंड कनेक्टिविटी दे रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है और इस दो जल राशि को पृथक कर रहा है। सिमिलरली दिस इज द पनामा स्थमस,
ये दिस वन इज दी नॉर्थ अमेरिका एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका। और ये जो पनामा स्थमस है यही एक छोटी सी पट्टी है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। पनामा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। और दिस इज दी कोलंबिया, जो कोलंबिया जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरता है, कभी आगे हम और डिटेल में इसको बता देंगे। तो और इसी यहीं पे स्थमस को कट करके यहाँ पे कनाल बनाया गया है जो कि कैरेबियन सी विच इज दी पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो ये कैरेबियन सी को ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टिविटी देता है। यहीं पे हम आर्टिफिशियली कनाल बनाया हुआ है। तो दिस इज व्हाट स्थमस। So note the Panama Isthmus connects the North America to South America and Suez Isthmus connect Africa to Asia. और similarly Panama Isthmus separates the Pacific Ocean from Caribbean Sea. Similarly Suez Canal separates Mediterranean Sea from Red Sea. So in this video I have covered most of the different forms of land masses and water bodies। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से सुने, तो निश्चित तौर पे ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं, क्या डिफिनीशंस हैं और कहाँ पे मेन वो सारे अवस्थित हैं वर्ल्ड में, कहाँ उनका पोजीशन है, उसका क्या काम है। और इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे वाटर बॉडीज़ को, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें।